नमस्कार। ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद के 59th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ एकता रमन। आज जो मेरे साथ ये बहुत सुंदर सी लेडी जो बैठी है, हमारी जो गेस्ट है, nobody would believe that she is first a good human being, then a social worker, and then probably I will count her profession as a contribution. She's a doctor. I welcome Doctor on our platform, on the platform of Humans of Faridabad, Dr. Shikha Gupta. She's a dental surgeon. Welcome to the show, Doctor. Thank you. Dr. Shikha ने वो काम किया है ड्यूरिंग द पैंडमिक जो और डॉक्टर्स ने किया है, लेकिन उससे थोड़ा सा हट के. So it was not her profession. She did not do free surgeries for sure, but she brought a smile, which is another important aspect of a dental surgeon. लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना, खास तौर पे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाना जब वो बहुत अंडर प्रेशर थे, and that to the underprivileged children. So whether it was education or learning a new skill or just keeping them busy, it was Dr. Shikha's initiative because she, as I said, that she's a social worker. So she is associated with the Jagriti Seva Trust, and that's how वो underprivileged बच्चों के लिए काम कर रही हैं. और पैंडमिक के दौरान ही नहीं, उससे पहले से काम करती आ रही हैं. अब उन्हीं से जानेंगे कि वो कितने टाइम से जुड़ी हुई हैं. डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये बताइए कि जागृति सेवा ट्रस्ट से आप कब जुड़ी और कैसे? 5 years बैक मैं जागृति सेवा ट्रस्ट के एक सेंटर 16 सेक्टर वाले सेंटर में आई जस्ट पेड अ विजिट थ्रू अ फ्रेंड. तो हम लोग ने वहाँ पे जाके कोई पेंटिंग कंपटीशन था, सो वी जस्ट वेंट देयर एंड जस्ट पार्टिसिपेटेड. बच्चों को देखा, फिर उनसे जुड़ के इतना अच्छा लगा. मैंने कहा इट वाज इन अप्रैल, सो मई में बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं. वहाँ पे उस टाइम पे सुजीत कौर मैम थी. शी वॉज अ रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम DAV, तो शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ दैट सेंटर. तो सुजीत मैम ने कहा कि समर वेकेशन में ये प्लान अप समथिंग इफ़ यू वांट टू डू. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऑफर लगा कि मुझे ये करने को मिल रहा है. तो देयर वर 150 kids, 150 kids from nursery to 10th class. So we started with a summer camp that included dance session, and that included various other activities, arts, sketching, and we had educational programs also, like Vedic maths classes. We had creative writing, learning in various ways. So we started with that. So then I was so much attached in those 15 days that I felt like joining Jagriti. No, I am going to be the part of it. So I joined that. Eventually, by December, unfortunately, Sujit Kaur ma'am had an accident and she could not survive. So after that, it became my responsibility, or I will say it was my destiny that God placed me before somebody was to be there. She left us in between, so God had placed me there. I really thank God for that, and destiny really plays a big role in that. Absolutely. But then eventually in 5 years we are doing different work for kids, and there are almost we have 11 centers in Faridabad. So 2 proper schools till 5th class, and then we have 4 computer center and 6 coaching centers. So we are coming up with 2 more schools. One will be in Sona, and one will be in Nimka village just nearby. So those will be with vocational training, with skill development trainings, and with a huge investment, of course, and huge. We are looking forward for huge profit for the kids, not in terms of money and monetarily, but learning, and probably उसकी वजह से उनको jobs मिल सकें. जो बच्चे अभी कुछ नहीं करे. पहले तो बच्चे सिर्फ हमारे पास इसलिए आ रहे थे कि उनके पेरेंट्स उनको ज़बरदस्ती काम पे ना भेज दें. अच्छा. तो टू सेव देम फ्रॉम वर्किंग दे वर कमिंग टू अस. बहुत 11 सेक्टर का जब हमने सेंटर शुरू किया तो हम झुग्गियों से बच्चों को लेके आते थे, एंड वी यूज्ड टू गिव देम फूड कि आप आओ, किसी तरह आओ. फूड के बहाने वो आते थे. तो दैट वे वी स्टार्टेड दैट. एंड हमारे सारे सेंटर का ये
सेट है कि वी हैव टू गिव देम समथिंग टू ईट because food is an important part of their life. Suppose they were coming every day. So we were giving every day something, be it a biscuit packet, be it a fruity, be it one samosa, something or the other. So we have a group of people who support us in that, even if one banana, but for them it is important. Of course. And for us also, we feel it attracts people. So now we have 1800 kids. 1800 is 1800 in all the centers. So and that's how they come, and उसके बाद से फिर आपने classes उनकी शुरू. फिर regularly now तो they are coming regularly for various things. We have started with guitar classes recently from 1st of July. Guitars बच्चों को procure करके दिए और फिर उनको मतलब we have issued them guitars, and now there are teachers who are taking classes. And these are happening online. Online, everything online right now. Right now we cannot have offline classes. तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली मैम, और दिस इज़ फॉर आवर व्यूअर्स आल्सो टू नो कि लॉकडाउन या पैंडमिक से ये बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि एक तो इनके पास सोर्सेज नहीं हैं. तो अगर हम कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस, तो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कैसे करेंगे? तो जागृति सेवा ट्रस्ट और डॉक्टर गुप्ता का ये प्रयास, निरंतर प्रयास है कि ना सिर्फ उन तक वो फैसिलिटी पहुंचाई जाए, उसका जो रास्ता है वो भी. सो दे आर हेल्पिंग देम विद guitars, they are issued to them like library books. And we are issuing library books, we are issuing them course books also. We are giving them registers on every 3 months basis. We are giving them registers, all the stationery, pen, pencil, Fevicol. And even if we had competitions during Diwali, we had some competitions like diya making and thali decoration. So we made DIY kits for that. And we issued them to the kids, and then kids made some fantastic things, and then we sold them also, and the money procured from that we use for giving stationery to the kids or supporting them for the fees. क्योंकि इन बच्चों के पेरेंट्स मोस्टली जैसे कारपेंटर्स थे, पेंटर्स थे, हाउसमेट्स थी, ड्राइवर्स थे, सो जिनके काम बहुत बंद हो गए, दे वर अफेक्टेड बाय दिस. बच्चे फीस नहीं दे पा रहे थे, उसकी वजह से उनको नोटिसेस मिल रहे थे स्कूल के थ्रू भी. दो आई विल से स्कूल्स हैव सपोर्टेड अस वेरी नाइसली. उन्होंने बहुत कंसेशंस दिए, बट एज यू नो दे नथिंग कैन बी गिवन फ्री, एंड इट शुड नॉट बी गिवन फ्री. आई एग्री, बिकॉज फ्री के लिए लोग वैल्यू नहीं करते. बिल्कुल सही. तो हम हर चीज़ के लिए, अगर आपको फीस भी हमसे चाहिए, बच्चों की हम जैसे फीस जमा कर रहे हैं, तो वी आस्क देम ओके यू पे 10% एंड देन विल पे द 90% थिंग. इससे उनकी भी रिस्पेक्ट बनी रहती है और उनको वैल्यू भी रहती है चीज़ की. उनको उस चीज़ की दे आर मोटिवेटेड टू अर्न फॉर दैट एटलीस्ट. वरना अगर सब कुछ ही फ्री मिलेगा तो दे विल नॉट अर्न फॉर दैट ना. उनके पेरेंट्स को भी लगेगा कि क्या करना है हमने कमा के, जब बच्चों के पे फीस आ ही रही है. तो हम लोग उसको सोच को भी बदलना पड़ता है. ये आपने इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. हमारे कुछ जैसे EWS कोटा है गवर्नमेंट का, थ्रू विच हम बच्चों को दूसरे स्कूल्स में एडमिशन दिलाते हैं, पब्लिक स्कूल्स में. सो मेन स्ट्रीम स्कूल. सो उसमें हमारे 70 बच्चे हैं जो DAV पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 30 KL मेहता में, एंड few in मानव रचना, few in model school, DAV DC model, few in ये SD public. There are small schools also. So बच्चे वहाँ पे EWS के थ्रू एक एग्ज़ाम होता है. So we prepare the kids for that. They get through the exam. और उसके बाद उसमें उनकी फ़ीस ऑलमोस्ट माफ़ होती है, बस 1 quarterly और 2 quarterly एज पर द स्कूल. हाँ, education which is compatible to the education we are giving to our kids. Absolutely. With so much of resources and with so much of money. So and बच्चों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि लोग उनको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते. बाकी बच्चों के पेरेंट्स उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. तो हमें पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी पड़ती है उसमें कि द वे यू हैव टू एडजस्ट. क्योंकि हमारे पास बच्चे आते हैं, बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, आपने एडमिशन करा दिया मैडम, अब बच्चे कह रहे हैं कि
उसके बाकियों के तो पेरेंट्स गाड़ी में छोड़ने आते हैं। मैं इसी विषय पे आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी, क्योंकि ये कई स्कूल से हमें भी इस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि जो EWS कोटा जो स्कूल के लिए कंपलसरी भी होता है कि उनको एक X% को एजुकेशन देनी है, तो उसमें जो आपके बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके जो चैलेंजेस हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, वो तो जायज़ हैं क्योंकि उनका बच्चा मेन स्ट्रीम में घुलने में टाइम लेगा। उनके साथ के पढ़ने वाले बच्चों के कपड़े, लंच बॉक्सेस, लंच और ये गाड़ियों में आना बहुत डिफरेंट कल्चर है और इन बच्चों का बहुत डिफरेंट है। लेकिन वो पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, वो स्कूल अथॉरिटीज़ से भी कंप्लेन करते हैं कई बार पेरेंट्स के एक लो स्ट्रेटा, we shouldn't be using these words, but people from the they are basically underprivileged. Yes, और वो नहीं चाहते कि उन बच्चों का एजुकेशन जो है हमारे बच्चों के साथ हो। तो आपके पास कभी उन पेरेंट्स ने अप्रोच किया या आपको इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया कि आप इन बच्चों को मेन स्ट्रीम में या इधर स्कूल्स में क्यों लाते हैं? नहीं, एग्जैक्टली ने कभी आपसे कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल्स भी सपोर्ट करते हैं, इट्स अ गवर्नमेंट स्कीम एंड स्कूल्स सपोर्ट देम। DAV, आई विल अप्रिशिएट Anita ma'am from DAV and from Anita, Anita ma'am from Sector 16 KL Mehta also. Yes. They have been very supportive to us. वो बच्चों को सपोर्ट करते हैं हर तरीके से, और कोई भी अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है एज पर यू आर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्कूल, दैट यू आर वेयरिंग द प्रॉपर यूनिफॉर्म, यू आर कमिंग ड्रेस्ड अप, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस एक्टिविटीज, यू आर डूइंग योर होमवर्क, सो टीचर्स आर नॉट दैट मच बॉदर्ड इफ यू आर participating equally. Correct. They are not bothered that you are going to a picnic और आप कुछ और कर रहे हो extra curricular. If you are going to, if you are doing similar things, तो they are okay with it. Like अभी हमारे सेंटर का एक बच्चा DAV के लास्ट एनुअल फंक्शन में he was the lead dancer. So ऐसे वो लोग भी सपोर्ट करते हैं DAV की। I must not name schools as per, but बहुत सारे schools हैं, उनके फुटबॉल टीम के कैप्टन्स भी हैं हमारे स्कूल के बच्चे। सो बहुत अच्छा सा चल रहा है एंड विद सपोर्ट ऑफ ऑल द पीपल। नहीं, बिल्कुल, हमें भी ऐसे स्कूल्स की जानकारी होनी चाहिए, लोगों को भी पता चलना चाहिए कि किस तरह से कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उन्हें रिस्पेक्ट और प्यार दोनों दे रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे हैं। जैसा कि आप बता रही हैं कि डांस में, गेम्स में, हो सकता है यहीं से कोई फ्यूचर डेफिनेटली बच्चे अगर टैलेंटेड हैं, और ये बच्चे हैं, इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता बट ये टैलेंटेड बच्चे हैं, तो अगर उनमें से कोई निकल आता है तो इवन आई विल बी प्राउड। और मेरा अभी पहला 12th का बैच इस साल निकलेगा, जो मैंने पढ़ाया है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसा रिजल्ट आता है, क्या है। 10th का मेरा मेजरली बैच है, मतलब जितने इंग्लिश मीडियम वाले बहुत सारे बच्चे हैं इस टाइम जो मैंने 10th में पढ़ाए, ऑनलाइन पढ़ाए। एक एक चैप्टर के नोट्स हमने बना के बच्चों को भेजे, वीडियोस भेजे, PPT भेजे कि आप पढ़ो उस तरीके से। रीडिंग की खुद से, क्वेश्चन आंसर्स दिए। इवन ड्यूरिंग दिस समर कैंप हमने हर ट्यूसडे थर्सडे को इंग्लिश कन्वर्सेशन के उनको वर्कशीट्स भेजी और बच्चों को ग्रामर के वर्कशीट्स करके वापस भेजनी थी। हमने उनको चेक किया, उनको करेक्ट किया। हाँ, ये मैंने भी कई एक दो जगह मतलब ऐसा देखा कि आपके जो ऑर्गेनाइज किए हुए समर कैंप्स थे वो बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे थे, और जहाँ शायद बहुत से स्कूल्स बच्चों को समर वेकेशन में एंगेज नहीं कर पाए, वहाँ जागृति सेवा ट्रस्ट ने बहुत अच्छा काम करा था कि बच्चों को एंगेज करके रखा, स्पेशली बिकॉज उनके पास और कोई साधन नहीं होते। तो वो समर कैंप के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। हमने 1 जून से 30 जून तक एवरी डे वी हैड, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे वी वर ऑन लीव, और वो हम होमवर्क दे देते थे बच्चों को बहुत सारा। सो एवरी डे वी वर कंडक्टिंग सम वर्कशॉप्स और कॉम्पिटिशन, और ट्यूसडे थर्सडेज हम इंग्लिश वर्कशीट देते थे, क्योंकि इंग्लिश हमारे बच्चों की और जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो ये अंडर प्रिविलेज हैं थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि हम लोग खुद भी बोलते हैं इंग्लिश, तो हमारे बच्चे सीख जाते हैं जल्दी। वो उन बच्चों को सुनने का ही मौका कम मिलता है, तो वो तो फिर वो धीरे धीरे पिकअप करते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश वॉज इम्पॉर्टेंट। हमने वो किया।
उसके अलावा हम समर कैंप्स में यूजुअली सम्मान ऐसी चीज़ें कंडक्ट करते थे कि जो हम बाद में सेल ऑफ भी कर सकें, एंड दे वर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, जैसे बुक मार्क्स हैं, दियाज हैं, राखीज़ हैं, लुम्बाज हैं, रोली चावल के किट्स हैं, थालीज़ हैं और वॉल हैंगिंग्स हैं विच वी कुड सेल ऑफ। तो हम हर ईयरिंग्स हैं, तो हमारे बच्चों हम वो सिखाते थे हर साल। और इस साल तो हमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए और आप देखते रह जाओगे कि बच्चों ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। वी हैड अ लाफ्टर चैलेंज, तो उसमें बच्चों के जो स्टैंड अप कॉमेडी से वो देखते हम वी वर अमेज्ड टू सी दैट कि बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। सो हमने जो एक फिल्म स्टार्स ने एक ये कोरोना टाइम पे एक वीडियो रिलीज़ किया था, मुस्कुरा दे इंडिया वाला। सो हमारे बच्चों ने वो उसको रेप्लिकेट किया इन देयर ओन वर्जन एंड इट हैज़ कम आउट सो फैंटास्टिक कि बच्चों का टैलेंट देख के इतना अच्छा लगता है। मैं बच्चों को बोलती थी कि बच्चों ये पीपीटी में नहीं समझ में आ रहा, मुझे वीडियो बना के दो। विद इन 10 मिनट्स आई यूज्ड टू गेट दैट। तो बच्चे एक दूसरे से सीख के सबसे करके कर रहे थे मैनेज। हाँ, डिवाइसेस उनके पास नहीं होती हैं, जैसे यूजुअली 4 बच्चे या 3 बच्चे जो एक फैमिली में, उनके पास एक मोबाइल है, तो वो उस एक मोबाइल से सारे बच्चे कर रहे हैं, तो इट टेक्स टाइम। इवन इफ लर्निंग हम कर रहे हैं तो 1 घंटा एक बच्चा अटेंड कर रहा है, दूसरा घंटा दूसरा बच्चा कर रहा है। तो वी यूज्ड टू प्लान अप लाइक दैट कि 8th क्लास की क्लास यूजुअली जैसे 8th क्लास की क्लास है वो 7th क्लास के टाइमिंग से मैच ना करे, सो दैट अगर आपके घर में क्लैश ना करे, सो दैट अगर आपके घर में एक बच्चा 8th में एक 7th में है तो उनको दोनों को पढ़ने का मौका मिले। और हमारे वॉलंटियर्स और टीचर्स हमारे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। और ये पूरा समर कैंप हमें मदर टेरेसा क्लब ने स्पॉन्सर किया था। सो वी गेव देम कैश प्राइजेज ऑल्सो। बच्चों को सारा जो भी आपने पार्टिसिपेट भी किया है, टू एनकरेज देम टू पार्टिसिपेट, हमने उनको कैश प्राइज दिया कि आपने सिर्फ पार्टिसिपेट करो, चाहे आपको आता नहीं, चाहे आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो भी आप सिर्फ पार्टिसिपेट करो, सेंड अस योर एंट्री, इंसेंटिव बेस्ड। यूजुअली हम गिफ्ट्स देते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम क्योंकि गिफ्ट्स खरीदना भी मुश्किल था और बच्चों के लिए पहुंचाना भी बहुत मुश्किल था। कैश इज ईजियर, बट किसी ना किसी के पास, रिलेटिव के पास पेटीएम होता है, तो उन्होंने नंबर दे दिए कि मैडम ठीक है। और बच्चों ने उसमें 2000 2500 तक अर्न किए, सो दैट विल सपोर्ट देयर एजुकेशन। डेफिनेटली उनके लिए तो ये भी बहुत मुश्किल होता है। तो ना सिर्फ उनको ये चीज़ें बनाना, बल्कि इन चीज़ों से को बेचकर उनसे इनकम जनरेट करके अपने आप को सपोर्ट करना सिखा रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि सिखाकर छोड़ देना मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फ़ायदा होता है। क्योंकि जब कोई भी बच्चा या कोई बड़ा एक स्किल डेवलप करता है और आपने उसे सिखा के छोड़ दिया, तो उसको सपोर्ट चाहिए होता है, हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, और वो सिर्फ तभी हो पाती है, जैसा कि शिखा जी ने बोला, कि उनको सिखा के उस सामान को बेच के उससे इनकम जनरेट की, ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। और मैं देख भी रही हूँ कि बहुत सुंदर सुंदर, शिखा जी अगर आपको अपने हाथ में लेके दिखाएं कि किस तरह की चीज़ उन्होंने बनाई है, और ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जो हम हमारे घरों में दिवाली या उसके अलावा किसी और ओकेजन पे भी ये बिल्कुल आप किसी भी फेस्टिवल में या किसी भी सामान में आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने घर के लिए। डेकोरेशन बहुत सुंदर सुंदर, बंधनवार है तो बंधनवार तो हर बंदा ऐसे ही लगाता है किसी भी फेस्टिवल पे, या नया घर ले रहे हो या कुछ भी ओकेजन है, मंदिर पे ही लगाते हैं। तो हमारे बहुत सुंदर सुंदर बंधनवार बनाए बच्चों ने, दिए बनाए, और बाकी रबर बैंड्स, फ्रेंडशिप बैंड्स, राखी, लुमे, तो बहुत चीज़ें बनाई है बच्चे ने। आप सेल कहाँ पर करते हैं, कैसे? ऑनलाइन ही कर रहे हैं अभी तो, सिर्फ फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि अभी इतना बन भी नहीं पाता है, ना हमारे पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि हम बड़े लेवल पे काम कर सकें। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कोई हमारे को ऐसे स्पॉन्सर करे या हमारे को ऐसे गाइड करे कि सपोर्ट करे। तो हम लोग की मदर टेरेसा क्लब, ये क्लब क्या है, व्हाट इज इट अबाउट, कैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया? मदर टेरेसा क्लब इज़ अ सोशल क्लब, जैसे बाकी रोटरी अलायंस वगैरह हैं, बट उसमें सिर्फ 30-40 फीमेल्स हैं, अब 40 फीमेल्स हैं इस साल, एंड आई एम द प्रेजिडेंट ऑफ दैट क्लब ऑल्सो दिस ईयर। तो उस मदर टेरेसा क्लब नॉट ओनली फॉर किड्स, कि सिर्फ एजुकेशन नहीं, ओल्ड एज होम जाते हैं हम लोग,
ओल्ड एज होम में उन लोगों को सामान देते हैं। और वैसे तो हर एस्पेक्ट में ही मदद की हर ज़रूरत पड़ती है। हर एस्पेक्ट में हम लोग गूंज को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। हम लोग होप फाउंडेशन के लिए भी सपोर्ट करते हैं। कहीं कहीं जहाँ पे हमें लगता है नीड है, ज़रूरत है, किसी को कुछ भी चाहिए, किसी की एजुकेशन सपोर्ट करनी हो, यहाँ पे भारती ग्लोबल करके एक प्ले स्कूल है, किसी ने एक स्टूडेंट ने ही बनाया। अच्छा। कि जो उसने 12th करने के बाद फिर ये प्ले स्कूल चालू कर लिया। Very nice. तो उसके ही मदर टेरेसा क्लब की एक मेंबर का स्टूडेंट है जिसने 12th पास करने के बाद, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट, उसने एक प्ले स्कूल खोला। तो उनको जो भी चीज़ें चाहिए थी, स्टेशनरी चाहिए या कुछ भी चाहिए, झूले चाहिए, वी प्रोवाइड एवरीथिंग। वी डिड अ ब्लाइंड कपल की मैरिज, तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर अस ऑल्सो, वी ऑल्सो एंजॉयड। तो ऐसे कुछ भी जो हमें समझ में आता है, जो सोसाइटी की ज़रूरत है, हम लोग करते रहते हैं। Wonderful. This is an example कि आप you know, especially when you say that those who are visually impaired या visually challenged, though challenged is not the right word to use, but yes, visually impaired, and उनकी मदद करना, उनको लाइफ सेटअप करने का एक मौका देना और उन्हें सपोर्ट करना is a very big and a beautiful initiative. You know, you ladies receive बहुत ही अच्छा था। हमने बारात, रिंग सेरेमनी, म्यूजिक, मतलब संगीत सेरेमनी, वी डिड एवरीथिंग इन अ डे, 1 डे, सुबह से शाम तक में हमने बहुत सारी चीज़ें, विद फुल मेकअप, फुल लहंगा सब, एवरीथिंग वाज स्पॉन्सर्ड। मतलब कूलर, सिलाई मशीन, मोबाइल, वी गेव एवरीथिंग which was required for the family to start. Even a double bed. तो एक ये चीज़ देखिए डॉक्टर शिखा कि बहुत सी संस्थाएं मतलब पैंडेमिक के दौरान काफ़ी काम करती हैं, लेकिन उससे पहले और अब जैसे अब सब कुछ ठंडा पड़ गया है, तो ये 2 महीने बहुत टफ थे सभी के लिए। द एंटायर कंट्री फेस चैलेंजेस, अप्रैल एंड मई, लेकिन मिड मई तक आते आते और फिर एंड तक आते आते जो है सबका काम हल्का हो गया। तो आपने फ्यूचर के लिए कोई प्लान्स बनाए हैं या आपका भी खाली जोर केवल पैंडेमिक? नहीं, हमारा पहले भी सिर्फ पैंडेमिक टाइम पे नहीं था, उससे पहले से चल रहा है। जो बच्चे अब स्कूल में एनरोल्ड हैं तो उनकी एजुकेशन तो ख़त्म होनी ही नहीं है ना, तो हमने उनको हर तरीके से सपोर्ट, जैसे हम पहले कर रहे थे हम वैसे ही कर रहे हैं। हाँ, फूड जो आइटम्स हम पहले प्रोवाइड कर पा रहे थे वो हम नहीं कर पा रहे बच्चों को अभी। बाकी बैग्स, बॉटल्स, टिफ़िन्स, वो हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं अभी भी। स्पेशली टेक्स्ट बुक्स, चाहे वो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मार्च एंड में जब सबके सेशंस ख़त्म होते हैं तो हम 14 सेक्टर के RWA, 15 के RWA, 17 के 16 से सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बुक्स इकट्ठा करो, हमारे बच्चों को डोनेट कीजिए। फिर पीपल डू इट, लोगों को करना चाहते हैं लोग, लेकिन उनको रास्ते नहीं पते। एंड एवरीबडी वांट्स कि एक जेन्युइन जगह पे करें, तो दे सी अस वर्किंग। हमारा काम बोलता है, हमें इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारा काम बोलता है। एंड वी डोंट बिलीव इन टेकिंग कैश फ्रॉम एनीबडी, वी बिलीव कि आप हमें उसके बदले कुछ दे दो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है। जैसे somebody wanted to donate money, so we said no, you donate us guitars, it will be helpful to the kids. आप उनकी फीस दे दो। We are planning to start with the taekwondo classes for girls अब recently. हाँ, we have almost planned it, we are going to start it from 1st August maybe, so that will be doing. So वो कॉस्ट फिर आप जो आपके सपोर्टर्स हैं हम उनके डोनर्स हैं वो आपको उस चीज़ वो अरेंज करके दे देते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, कैश की आवाजाही नहीं होती, कैश फ्लो अवॉइड होता है। सो पीपल, एंड यू आर राइट कि लोग करना चाहते हैं, लेकिन एक तो शायद ट्रस्ट एक फैक्टर होता है, दूसरा ये कि आप लोग एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं तो वो आपको देख के और फिर उनको लगता है कि हम भी जुड़ सकते हैं और हम इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रताप जी, हमारे पास कोई क्वेश्चन है ऑडियंस से? एक नैन्सी अरोड़ा है, वो कह रही हैं कि हम लोग भी पाठशाला चलाते हैं बच्चों की, जिसमें 80-90 बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं बट इनके पेरेंट पढ़ा नहीं सकते। अब हमारी संस्था इनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही है, बट ज़्यादा इंटरेस्ट है इन बच्चों का पढ़ने में, हमें भी कुछ सुझाव दीजिए आप। और ये पाठशाला दशहरा ग्राउंड के आसपास चलती है। अब
आपकी कंसल्टेंसी चाहिए उनका, आप बताइए कि आप कैसे इस मॉडल को रन कर रहे हैं। नहीं, उसमें सबसे पहले बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है आपको वो सॉर्ट डाउन करना पड़ेगा कि क्लास एक संस्था है, हाँ जी, मेंबर है। अच्छा, तो उसमें हम लोग जैसे करते हैं कि हमारे पास एक सेट करिकुलर हम फॉलो करते हैं करिकुलम कि हमें ऐसे ये करना है कि हमें जनवरी के मंथ में बच्चों को ये पढ़ाना ही पढ़ाना है, फरवरी के मंथ में हमें ये पढ़ाना है। सो वी हैड द टाइम टेबल, वो हमने 5 साल 10 साल पहले ही बना लिया था, वी फॉलो दैट। सो वो बच्चों के पास ऐसे आजकल ई बुक्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, CBSE ने भी इशू की हुई हैं, ई बुक्स आप डाउनलोड करो और उनसे पढ़ सकते हो। तो एक टीचर बस एक गाइड की तरह एक्ट करता है कि वो आपको बता सकता है कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, पढ़ना क्या है ये हमें पता है। लाइक हमारे पास, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, 10th का पिछले साल हिस्ट्री में एक चैप्टर था नेशनलिज्म इन इंडिया। सो नेशनलिज्म इन इंडिया इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और मुझे लगता है सबको इस बारे में कुछ ना कुछ पता ही होता है। तो उसको कैसे पढ़ाना है वो एक टीचर का रोल आता है वहाँ पे। तो हमने जैसे किया था, हमने एक PPT बनाई थी पूरी, तो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि इंटरेस्टिंग वे में कि इस ईयर से अब हम नेक्स्ट ईयर पे स्विच हुए तो नेक्स्ट ईयर में क्या एक्टिविटीज़ हुई और कौन से मेन लीडर्स आए। तो वी मेड दैट PPT और बच्चों को वो भेजा। अच्छा। और फिर उसके बाद वी हैड दैट कि यू प्ले द रोल ऑफ, यू आर 1914, यू आर 1915, नाउ वी विल कम्युनिकेट कि आपने क्या, आपके इवेंट्स में क्या हुआ, तो आपके साल में क्या हो रहा है, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। तो वी डिड लाइक दैट क्वेश्चन आंसर्स। खैर मैंने खुद भी बहुत लिखे और हमारे यहाँ के जितने सपोर्टर्स हैं जागृति के, उन सारे वॉलंटियर्स ने इवन आंसर्स तक लिख के चैप्टर्स के बच्चों को फॉरवर्ड किए, हिस्ट्री के भी, इवन सिविक्स, SST के, साइंस के, इंटरेस्ट भी जनरेट। हाँ, और फिर बच्चों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए भी मौका मिल रहा था ना। जब बच्चे अपना घर में बंद थे तो बच्चों को आपस में इंटरैक्ट करने का हम मौका दे रहे हैं कि एक क्लास में आप 10 बच्चे हो एंड यू आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। तो किड्स फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। और आपने उनको साथ में एक टॉपिक भी दे दिया ना चर्चा करने के लिए। हाँ, नहीं तो उल्टी सीधी बातें करते। तो वो हम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी एटलीस्ट 1 in a month होता है हमारे यहाँ। जैसे हम नर्सरी के बच्चों को पहले सिखा रहे थे, तो इफ़ वी वांट टू मेक देम लर्न द सिंपल स्टेटमेंट लाइक माय नेम इज़ सो एंड सो, तो उसके लिए हम जैसे किसी के पीछे हैंकी फेंक दिया, जो गेम्स नहीं होते थे हम बचपन में खेलते थे, जिसके ऊपर आया अब वो बोलेगा वो स्टेटमेंट। सो दैट वे किड्स विल लर्न। प्ले का तरीका है, हमने चौक से वो स्क्वायर्स बनाए हुए थे, उसमें जंप करो किस नंबर पे, फिर एडिशन भी उस तरीके से सिखा के। सो वो थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ता है या आपके इनबिल्ट होता है। मुझे लगता है, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और मेरे बच्चों के साथ मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। और आई विल, उन बच्चों के लिए भी मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया इस पेंडेमिक के टाइम पे। सारा कुछ, कंप्यूटर से भी नहीं हूँ मैं ज़्यादा, इतना डरती हूँ इनफैक्ट कंप्यूटर से। तो बच्चों ने बहुत हेल्प की स्लाइड्स बनाने में, PPTs बनाने में, प्रेजेंटेशंस बनाने में, मेरे बच्चों ने बहुत हेल्प की। माय हस्बैंड इज़ अ वेरी बिग सपोर्ट कि वो मुझे हर तरीके से कोशिश करते हैं कि मैं कर लूँ। माई मदर इन लॉ सपोर्ट्स मी अ लॉट, क्योंकि वो मुझे इतना एम्पल टाइम दे पाती हैं कि यू बी फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू। सो ऑल माई पेरेंट्स आर देयर, ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी फाइनेंशियली भी और हर तरीके से। देखिए, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। कोई भी महिला अगर समाज में किसी भी तरह का काम कर रही है या वो अपना प्रोफेशन भी अगर एक प्रोफेशन अपना पाती है या करियर बनाती है, तो उसमें उसकी फैमिली का कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है। वरना अगर फैमिली की तरफ से बैकबोन स्ट्रांग नहीं हो तो कोई भी चीज़ अचीव करना बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, फिर चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो। और जैसा कि डॉक्टर शिखा बता रही हैं कि ये टेक savvy नहीं है। इससे रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन ये भी है कि जब ऑफलाइन टू ऑनलाइन शिफ्ट हुए तो आपके साथ और जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई थी, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं या हाउसवाइफ्स हैं कैसे, तो इस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया? क्योंकि अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हों
तो भी मोबाइल ना सब बच्चे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमारी जनरेशन को थोड़ी सी दिक्कत आती है। नहीं, इस टाइम में आई रियली से कि सबके बच्चों ने सपोर्ट किया। हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं उन सबके बच्चों ने सपोर्ट बहुत किया। सबके बच्चे पीपीटी बना रहे हैं, कभी कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऐसे कर लो, मेक इट इंटरेस्टिंग इन दिस वे। जैसे हम बना भी रहे हैं तो उसको एडिट कर रहे हैं कि ये आपने बोरिंग है तो ऐसे बना लूँ। उसमें कुछ जैसे लाफ्टर शो का ही मैं बता रही हूँ, उसमें कुछ आई डोंट नो व्हाट दे आर कॉल्ड, पॉपअप्स डाल दिए, स्माइलिंग फेस, और वो सब बच्चे कर रहे हैं, कर्टन रेज करके स्लाइड्स प्रेजेंट कर रहे हैं, सो दे लुक वेरी इंटरेस्टिंग। बच्चों के आइडियाज हमसे बहुत ज़्यादा हैं और बहुत बेहतरीन रहे होंगे, क्योंकि आपके बच्चे सबके बच्चों को वो सब चीज़ दिखानी आती है जो इन बच्चों को पसंद आ रही है। नहीं, हमारे पास ये हमारे जो ग्रुप में हैं उनके बच्चे इंजीनियर्स हैं, किसी के बच्चे डॉक्टर्स हैं, तो और हाँ सीएज हैं, तो दे वर हेल्पिंग अस। बच्चों नेक्स्ट जनरेशन ने बहुत हेल्प की हमारी। गुड पेरेंटिंग कह सकती हूँ मैं कि जब व्हेन दे सी देयर मदर्स डूइंग इट they definitely follow it. This is one time when everybody comes closer also. Pratap ji, do we have a question? राजेश्वर कौशिक हैं, ये लिख रहे हैं कि मैम क्या आप उन संस्थाओं की भी मदद करती हैं जो संस्थाएं शिक्षा पर काम कर रही हैं और उनके पास फंडिंग की कमी होती है? डेफिनेटली वी डू दैट, बट अभी जैसे मैंने पहले भी कहा, वी डोंट बिलीव इन फाइनेंशियल सपोर्ट लाइक दैट। आपको कोई सामान की रिक्वायरमेंट हो, आप हमें बताइए तो वी कैन डू इट। वैसे हमारा इंस्टीट्यूट जागृति सेवा ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड अंडर ATG, सो दैट इज टैक्स एग्जेम्प्टेड। तो हमारे पास कहीं पे लोग फंडिंग देते हैं तो वी यूज़ दैम, बट कैश तो हम किसी को भी ना लेना पसंद करते हैं ना देना पसंद करते हैं। आप हमें सामान दो, हमारे को बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, बेंचेस हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, एनीथिंग we'll try to do that. आपको बुक्स चाहिए, आपको आर्ट मटेरियल चाहिए, एनीथिंग विल डू दैट। तो राजेश्वर जी, अगर एजुकेशन से रिलेटेड जो आपका सवाल था कि अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है या आप अपने आसपास कुछ बच्चों को देखते हैं तो आप इनसे संपर्क करके उनकी वो ज़रूरतें जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं एजुकेशन के लिए, वो अगर पूरी हो जाएंगी तो बच्चों का एजुकेशन से इंटरेस्ट या वो बच्चे ही इनके साथ जुड़ जाएं। डेफिनेटली हमारे सेंटर्स सब जगह हैं। सैनिक कॉलोनी भी सेंटर है, NIT भी सेंटर है, हमारे पास 11 सेक्टर भी सेंटर है। तो आपको जहाँ पे भी आपका क्लोजेस्ट सेंटर है, आप वहाँ पे एनरोल कराओ बच्चों को, हम लोग सब कुछ देंगे। दूर रहते हो या इंटीरियर्स हो या कोई ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ आप कुछ काम कर सकते हैं या अभी आपने सोचा है? अभी हम जैसे निमका में हम शुरू कर रहे हैं, हाँ। तो निमका तो विलेज वाला एरिया ही है, हम वहाँ पे बना रहे हैं अभी बिल्डिंग। और सोना में भी जहाँ पे हमारा बन रहा है दैट इज इंटीरियर ओनली, वहाँ पे भी गांव वाला ही एरिया है टोटल। तो वहाँ पे भी हमने अभी एक बिल्डिंग हमें किसी ने डोनेट की है, सो वी आर कन्वर्टिंग दैट टू स्कूल। वो पेंडेमिक के चक्कर में 2 साल पीछे हो गए हम, जो हमारा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए थे अभी, वो प्रोबेबली 2025 तक कंप्लीट हो जाएंगे। सो विल स्टार्ट अप विद 2 मोर सेंटर्स। और अभी कल ही मुझे किसी ने कहा था कि बल्लभगढ़ में उनके पास एक ऑफिस एरिया खाली है, वेयर दे वांट टू स्टार्ट विद अ न्यू सेंटर, सो वी विल डू दैट। लोगों का सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, ये बहुत जरूरी है कि लोग सामने आए और जुड़े। हाँ जी, एक मिस्टर कौशल है, वो कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, उसके लिए आपके ट्रस्ट की क्या प्लानिंग है? ये सवाल मेरे भी मन में था क्योंकि आप बच्चों के साथ डील कर रही हैं, तो नहीं, अभी तो हम सब कुछ ही ऑनलाइन कर रहे हैं, हमने ऑफलाइन अभी कुछ शुरू ही नहीं कर रहे। पर क्या उन बच्चों में अवेयरनेस भी आप दे रहे हैं? डेफिनेटली हमारे को कोरोना अवेयरनेस पे हमने सेशंस भी लिए थे। डॉक्टर अरुणा ने हमारे यहाँ बच्चों को सिखाया, मास्क कैसे पहनते हैं, उतारते हैं, उसके भी तरीके सिखाए, उसको सैनिटाइज कैसे करते हैं। प्लस हमने बच्चों से कंपटीशन भी कराए थे रिलेटेड टू दैट यू हैव टू एडवर्टाइज थिंग्स विच आर रिलेटेड टू कोरोना, सो दैट बच्चों को पता तो चले। एक जना पीपी किट का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, एक जना सैनिटाइजर का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो बच्चों को ये समझ में आता है कि क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्योंकि आप डॉक्टर्स हैं तो आपसे तो सीखेंगे।
तो हमने गाइडलाइंस भी दी, बच्चों ने किया भी उससे रिलेटेड, और हम थर्ड वेव में भी वी आर प्लानिंग दैट ओनली। हम सब कुछ ऑनलाइन ही करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट मंथ का टोटल सिलेबस तैयार है कि हमने क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। अभी मेनली स्कूल्स खुले नहीं हैं, प्रॉबेबली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जब रिजल्ट्स आ जाएंगे 10th और 12th के। जब रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद नया शुरू हो जाएगा सारा कुछ। रजिस्टर्स वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू द किड्स, रजिस्टर्स और पेंसिल्स पेन्स हमने दे दिए हैं बच्चों को। और जिनको रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे सेंटर के, वी हैव अ ग्रुप, उसमें हमारा एक लॉकडाउन ग्रुप है। तो उस लॉकडाउन ग्रुप में बच्चे हमारे जो भी आना चाहते हैं, हमारे जितने 1800 बच्चे एनरोल्ड हैं, वो सारे उसमें से जो भी उसमें ज्वाइन करना चाहता है, दे हैव द एक्सेस टू दैट। वो ज्वाइन इन करें, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसमें डालते हैं कि मैम मुझे ये चाहिए। क्लासेस करवानी है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो वो भी बच्चे डालते हैं कि मैम हमारा मैथ्स का ये वाला टॉपिक नहीं हुआ है। सो वी हैव द कंसर्न वॉलंटियर। टीचर्स हमारे पास ज़्यादा नहीं हो पाते क्योंकि हम सैलरीज नहीं दे पाते, तो वॉलंटियर्स हमारे पास होते हैं जो विलिंगली कर रहे हैं, जो मेरे जैसे लोग जो विलिंगली पढ़ाते हैं। तो उसमें हमारे पास टीचर्स भी हैं, रिटायर्ड टीचर्स भी हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं जो पढ़ा रही हैं। तो वो लोग ग्रुप बना के, इवन बच्चों ने फॉर सर्टिफिकेट्स, देयर आर फ्यू किड्स हु वांट टू डू इट, तो वी गिव देम सर्टिफिकेट्स ऑल्सो। हाँ, जैसे जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं, अगर इफ़ यू वांट टू टीच, आपने 10 बच्चों का बैच हम दे देते हैं आपको, आप मैथ्स पढ़ाओ, ये टॉपिक्स कवर कराओ, देन यू शो अस द रिजल्ट, देन विल गिव यू अ सर्टिफिकेट ऑल्सो फॉर दैट। डेफिनेटली वी आर सो दैट वे हमारे साथ बच्चे भी जुड़ते हैं, और उन बच्चों को भी ये हैबिट इनकलकेट होती है कि कैसे हम सोसाइटी को गिव बैक करें। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए ना कि यू शुड बी कंसिडरेट टुवर्ड द अंडर प्रिविलेज सोसाइटी, अंडर प्रिविलेज किड्स। सो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, आप ज़रूरतें समझो। जब आप इंटरैक्ट करोगे 10 बच्चों से, 1 महीने तक इंटरैक्ट करोगे, तो आपको समझ में आएगा उनको माँ की क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे बच्चे उनसे ना सिर्फ उनके चैलेंजेस देख के सीखते हैं, बल्कि शायद जो हमारे बच्चों के पास है उसकी वैल्यू, उसकी कीमत भी तभी समझते हैं जब उन्हें पता चलता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो उन फैसिलिटीज़ के बिना भी अपना बचपन जी रहे हैं। प्रताप जी, राजेश्वर जी का एक और सवाल है। वो कह रहे हैं कि कई बार गांव के बच्चों के पास भी सुविधाओं का अभाव होता है, संसाधन नहीं होते हैं, तो बल्लभगढ़ के आसपास के गांव के बच्चे की भी आप लोग सहायता करते हैं क्या, जो बच्चों के पास सुविधाएं नहीं है या पैसे नहीं है पढ़ने के लिए? अभी हमने लॉकडाउन में जो एनरोल्ड बच्चे हैं उनके पास, जिनके पास मोबाइल नहीं था, तो बच्चों ने अप्रोच किया, हमने मोबाइल्स प्रोवाइड किए, सेकेंड हैंड मोबाइल्स लोगों से मांगे भी कि आप दो हमें, तो हम आगे देंगे बच्चों को, और ऐसा किया। बल्लभगढ़ में अभी हमारा सेंटर नहीं है, और लेकिन अभी हम शुरू करने वाले हैं बल्लभगढ़ में आफ्टर अ मंथ और सो। अभी हाँ, हमें किसी ने, यू विल बी अमेज, ही इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, तो उन्होंने हमें कहा है कि आप बल्लभगढ़ में शुरू करो। सो वी आर प्लानिंग। अभी कल ही ऑफर आया है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, प्रैक्टिकलिटी ऑफ द थिंग्स, बिकॉज हमें सिक्योरिटी, सेफ्टी सब पॉइंट्स माइंड में रखने पड़ते हैं। ये नहीं है कि हम सेंटर शुरू कर दें और फिर बच्चे आए ना, आपस में लड़ें। हमें सब कुछ डिसिप्लिन के लिए, सब चीज़ों के लिए पॉइंट्स नोट करने पड़ते हैं, पहले हमें ही अपने प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं। बट डेफिनेटली बल्लभगढ़ में हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। और फिर हर सेंटर को चलाने के लिए एक लोकल टीम की भी ज़रूरत होती है, तो जैसे ही वो टीम रेडी हो जाती है तो प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट हो जाता है। बट लॉकडाउन ना हो और बहुत डेंजरस थर्ड वेव ना आए तो ये काम जल्दी भी, क्योंकि हम जब नए बच्चों को हम एनरोल कर रहे हैं और उनको सीधे ऑनलाइन पढ़ाना ना बहुत मुश्किल काम है। जो बच्चे हमें पहले से जानते हैं वो हमें रिलेट कर पाते हैं। जो हमारे को 2 साल से पहले से हमारे पास बच्चे हैं एनरोल्ड, वो हमसे बहुत जल्दी रिलेट कर लेते हैं। उनको पता है कि आई एम अ टीचर, सो दे विल ओबे मी, दे विल हैव सम रिस्पेक्ट फॉर मी। अगर बच्चों को लग रहा है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, मतलब उनके लिए मैं एक नई फिगर हूँ, तो फिर नहीं कर पाएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और ऑनलाइन तो आप ट्रेस भी नहीं कर पाओगे कि बच्चा क्या बदमाशी कर रहा है। क्या रिलेटेड मेरे ध्यान में क्वेश्चन बहुत देर से था कि पहली बात तो ये कि वो बच्चे जानते हैं कि आप डॉक्टर हैं प्रोफेशन से, और दूसरा ये कि ये जानने के बाद कि आप डॉक्टर हो
तो क्या वो थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं या उनके साथ कनेक्ट करने में नहीं, आसानी बच्चे होती है? बड़े ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बच्चों को ट्रीट करते हो। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, मेरे पास आके फिलिंग्स भी करा के जाते हैं। अच्छा। अपना डेंटल ट्रीटमेंट भी बच्चों के पेरेंट्स का भी मैं करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो वहाँ पे हैं मेरे सेंटर्स के बच्चे। बट ठीक है, चलता रहता है धीरे धीरे। वो तो अब आपके परिवार का हिस्सा और आप उनके हाँ, परिवार का हिस्सा बन गए बिल्कुल, हैं, डेफिनेटली तो ऐसा ही शायद है। बहुत सी ऐसी बातें जो अपने पेरेंट्स से नहीं करते होंगे आपसे फिर भी शेयर कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा होता है। और जागृति तो मेरे लिए ही एक सेकेंड लाइफ हो गई है, कि एक पैरेलल लाइफ जो चल रही है, एंड इट हैज गिवन मीनिंग टू माय लाइफ। डेफिनेटली आई विल से दैट। सो बीइंग अ डॉक्टर, बिकॉज दिस प्रोफेशन मतलब इसको हम अगर पैंडेमिक से परे देखें, सो बीइंग अ डेंटल सर्जन अपने आप में ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोफेशन होता है। इस प्रोफेशन को और अपनी फैमिली को और मैं यहाँ पर ये बताना भी चाहूँगी कि डॉक्टर शिखा गुप्ता इज़ द वाइफ ऑफ डॉक्टर आशीष गुप्ता, who is the founder of two hospitals. One is the Palwal Hospital in Palwal, and the other is the NIMS Hospital, Yes. which is here in Faridabad. So और हमने कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब से भी चर्चा की थी, डॉक्टर गुप्ता से भी। तो दोनों ही हस्बैंड वाइफ आप ऐसे प्रोफेशन में हैं, इसके बीच में फैमिली को टाइम देना और फिर इन बच्चों की भी मदर बन पाना, ये कैसे करती हो आप? नहीं, देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो एक स्किल होती है। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। लोग टीवी भी देखते हैं, टीवी एक एडिशनल पार्ट है जो मेरा और डॉक्टर आशीष ने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है कि हम लोग नहीं देखते हैं मोस्टली, तो उससे बहुत टाइम मिल जाता है। फैमिली को तो टाइम देना ही होता है, और मैंने अभी भी पहले भी कहा, बिना फैमिली सपोर्ट से नहीं हो सकता। बच्चे अब, पहले तो इनिशियली बच्चे छोटे थे तो फिर भी लगता था, अब तो बच्चे बड़े हैं तो इट्स ओके, बच्चे खुद ही बहुत सपोर्ट कर लेते हैं। और मैं कहूँगी कि मेरी एक जॉइंट फैमिली है, और जॉइंट फैमिली में भी सबका सपोर्ट मुझे मिलता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर पुल बैक करेंगे वो लोग तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती, बट दे हैव ऑलवेज एनकरेज्ड मी। तो स्पेशली मेरी मदर इन लॉ ने भी कभी नहीं कहा कि तुम ये मत करो, डोंट गो आउट, डोंट स्टेप आउटसाइड। उन्होंने हमेशा एनकरेज किया, नहीं, यू गो, यू डू, आई विल टेक केयर ऑफ द हाउस। तो वो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, रिसोर्सेज तो सबके पास होते हैं, बट समबडी टू मैनेज दीज रिसोर्सेज भी होना चाहिए, डेफिनेटली। तो पेरेंट्स, माई मदर इन लॉ, दे टेक केयर ऑफ दैट पार्ट, और बच्चे सपोर्टिव हैं, और डॉक्टर आशीष तो सो एज अ डू यू हैव अ क्वेश्चन विद दैट? एक सवाल ये मेरा ही है। हाँ जी, बताइए। सभी वर्गों के लिए कहीं ना कहीं पेंडेमिक तो रहा, लेकिन पेंडेमिक मीडिया के लिए भी रहा था, और हम लोग भी सड़कों पर उतर रहे थे। आप डॉक्टर फैमिली से हैं और आपके हॉस्पिटल्स भी हैं और आप डेंटल सर्जन हैं, तो क्या मीडिया वालों के लिए भी कोई स्कीम है आपके पास? एनीवेज, आपको जैसे हेल्प चाहिए आप बताइए, हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। किसी को भी जैसे हम मीडिया वाले जैसे पुलिस वगैरह से भी मिलते रहते हैं, प्रशासन से, तो वो बोलते हैं कि कभी कोई काम हो, कोई हम आपके काम आ सके। मैंने कहा नहीं जी, बहुत मेहरबानी, भगवान ना करे कि हमें पुलिस या डॉक्टर की ज़रूरत पड़े, बट यस, डॉक्टर शिखा गुप्ता, डॉक्टर आशीष, डेफिनेटली हमारा हॉस्पिटल भी एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो किसी को भी हेल्प चाहिए हो, नॉट ओनली फ्रॉम मीडिया, एनीवेयर किसी को हेल्प चाहिए तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, और आपको तो बोलने की बात ही नहीं है। वेरी नाइस। सो एज अ डॉक्टर, फाइनली डॉक्टर गुप्ता, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव एन अपील टू आवर व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, जो आपको इस टाइम देख सुन रहे हैं। आप एज अ डॉक्टर एंड एज अ सोशल वर्कर उनसे क्या अपील करना चाहेंगी? एक नहीं, आप बहुत सारी भी कर सकते हैं। देखिए, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी का मतलब होता है जब हम लोग इकट्ठे होकर कुछ काम करना चाहते हैं, तो कंट्री की अपलिफ्टमेंट या किसी चीज़ की भी अपलिफ्टमेंट तभी होती है जब सोसाइटी की पूरी तरह से अपलिफ्टमेंट हो। हम अगर अपने बारे में सोचें, सिर्फ सेल्फिश मोटिव से सोचेंगे तो काम नहीं बनेगा। जैसे गीता में भी भगवान जी ने कहा है कि अगर हम फ्रूट्स का वेट करें और प्लांट ग्रो ही ना करें, करेक्ट, तो हमें सिर्फ इस सोसाइटी में इंडिविजुअल्स चाहिए जो सिर्फ ट्री प्लांट करें, फ्रूट का वेट ना करें। तो अगर हम सब ऐसे जुड़ें, और बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है,
अगर ईच वन सर्व वन भी हो जाएगा ना तो भी हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमारे को हम सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी, हमारा कंट्री इतना पुअर है, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, हमारी सोच ऐसी है, तो वो सोच बदलने वाले भी तो हम ही है ना। अगर हम लोगों को पढ़ाएंगे, हम लोगों को एजुकेट करके आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म देंगे, तो सच्ची ठीक है कि हमारे पास जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं वो भी, अगर वो भी सोचो आप पढ़े लिखे होंगे तो आपकी लाइफ की, आपकी सोसाइटी की, आपकी कंट्री की कितनी अपलिफ्टमेंट होगी। तो आई विल से सबको कोशिश करनी चाहिए, अपने साथ साथ एक जने को ज़रूर पढ़ाओ आप, चाहे ज़्यादा को नहीं पढ़ा पा रहे, आप एक जनों को पढ़ाओ या उसकी एजुकेशन स्पॉन्सर करो। हमारी संस्था से भी जुड़िए। आई विल अपील कि आप किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली भी, चाहे किसी और तरीके से आप आके पढ़ाओ। हमारे पास ऐसे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो आके पढ़ाते हैं, जो कुछ सिखाते हैं। आप में जो टैलेंट है वो सिखाओ। किसी को आर्ट वर्क आता है, ये किसी को आर्ट वर्क आता है, आई विल नेम एकता मैम जिन्होंने ये सब सिखाया है हमारे यहाँ आके। वो बच्चों को सिखाती हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ, ऐसे कोई भी आपको जो फील्ड में आप एक्सेल करते हो, हमारे पास कंप्यूटर्स में इतने सारे टीचर्स हैं तो वो सिखाते हैं। तो आपको जो आता है आप हमें अप्रोच कीजिए, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे कि आप किसको सिखा सकते हो। बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जो घर में खाली बैठ के उनको लगता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे यूज़फुल बनाएं, तो आप जुड़िए ऐसी संस्थाओं से। हमारे यहाँ काम हो रहा है और रेगुलर बेसिस पे होता है। ये नहीं कि आपने एक दिन काम किया फिर आप एक महीने छुट्टी पे हो, तो ऐसा नहीं है। आप रेगुलर बेसिस पे काम करना चाहते हो तो आप करो, जब आपके पास टाइम है, हफ्ते में 2 दिन टाइम है, हफ्ते में 3 दिन टाइम है, आप वो टाइम डिवोट करिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है और बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। अगर आप अपना स्टेप बढ़ाओगे तो वो स्टेप एक सीढ़ी होगा जो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने डॉक्टर शिखा गुप्ता। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में एक एम या एक पर्पस या एक मोटो लेकर चलें। एंड एज शी सेड, ईच वन सर्व वन। अगर आप किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सुधार ला सकते हैं तो ये बहुत बड़ा चेंज है। एंड आई पर्सनली डेफिनेटली बिलीव, एज दे से दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। I think behind every successful man is behind every successful woman is a man and another woman, because ना सिर्फ इनके हस्बैंड का सपोर्ट है इनको, लेकिन इनकी फैमिली, इनकी मदर इन लॉ, इनके पेरेंट्स, इनके बच्चे। सो इन सब के सपोर्ट के बिना एक लेडी के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि दीज आर ऑल वुमेन, सो इट्स अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट। हमारे बहुत सी महिलाओं के कंसर्न्स रहते हैं कि हम बाहर निकले तो हमें पता नहीं होता हम किस तरह के लोगों के साथ काम करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ माहौल कैसा होगा। सो ट्रस्ट मी, दीज आर ऑल एजुकेटेड प्रोफेशनल वुमेन, दे आर फ्रॉम गुड फैमिलीज, दे आर एंटरप्रेन्योर्स, दे आर हाउसवाइफ्स, दे आर टैलेंटेड वुमेन जो किसी तरह से समाज में सुधार लाना चाह रही हैं। और अगर आप अकेले हैं और आपको लगता है आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो इनके साथ जुड़िए, फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए, तन मन धन किसी भी तरह से इनके साथ जुड़िए और अच्छे काम में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। आई थैंक you very much, Dr. Shikha Gupta. Thank you so much for being here and giving us such valuable information that it has filled me with positivity. I'm sure हमारे viewers भी बहुत positive हो गए इस सेशन के बाद, अच्छा महसूस करेंगे. So tomorrow again we will be back with a new guest जो समाज में अपनी भागीदारी दे रहे हैं. किसी भी तरह से योगदान कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, योगदान होना चाहिए सामाजिक कार्यों के लिए, बस इतना ही बहुत है. So we'll meet you tomorrow again. तब तक के लिए नमस्कार.